Hi there. So we were studying existence and uniqueness theorem given by Picard, and let us write an important remark that these conditions, so the conditions of existence and uniqueness. So what are the conditions? Continuity of F, Lipschitz in Y. These two conditions, they are only sufficient. This means if conditions are true, then you will get a unique solution. But if conditions are not true, then we cannot say anything, as these conditions are not necessary for existence and uniqueness of the solution. So let us take one more example of existence and uniqueness. This question says that discuss the existence and uniqueness of the solution of initial value problem dy by dt equals to y 1 by 3 plus t with one condition at t equals to 1 y equals to 0. So you can check that f, what is f here? So right hand side y 1 by 3 plus t. So f is continuous as y 1 by 3, this is continuous, t is continuous. Okay, so f is continuous function. Now take 2 point ty1 and ty2, and for these 2 points we check Lipschitz in y. For this we compute difference fty1 minus fty2, which is y1 by 3 plus t y1, and then y2 1 by 3 plus t. Okay, and plus plus, so, and you can cancel t. So what we got on the right hand side, so we have y1 1 by 3 minus y2 1 by 3. Now we simplify this expression and we try to write this expression. If you can write this less than or equals to y1 minus y2 times a constant independent from point. So if you can write this, we say that f satisfies Lipschitz condition. Okay. So now we simplify the expression to get y1 minus y2 from this y1 1 by 3 minus y2 1 by 3. For this we write y1, say this is a, so aq minus bq. Of course this will be y1 minus y2. तो इसको क्या लिख सकते हो, a minus b and multiplied by a square plus b square plus ab. So use this expansion.
ओके, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो एक्सपेंशन है क्या होता है, ए क्यू. सो टेक a equals to y1 1 by 3 and b equals to y2 1 by 3. try try to write right hand side. राइट हैंड साइड में क्या बनाना है आपने, y1 माइनस y2 बनाना है आपने. ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. So use this expansion on right hand side. So you can write right hand side, ये तो बन जाएगा y1 माइनस y2, मॉडुलस है तो मॉड लगा दो. तो इसको इधर लेके जाओगे राइट में तो डिवीजन में आ जाएगा ये फैक्टर. So y1 2 by 3 plus y2 2 by 3 plus y1 1 by 3 y2 1 by 3. So condition is free, we don't have any information. So this means y can be anything. But since you are dividing with y, now y can be anything. So y can be 0 as well. Or more precisely, if we take y2 as 0, किसी एक को 0 ले लो, तो कंडीशन क्या बनेगी, एफ टी y1 माइनस एफ टी y2 0. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ऊपर आ जाएगा y1 माइनस 0, नीचे आ जाएगा y1 2 by 3. अब y1 भी फ्री है ना, y1 y2 क्या है, y की वैल्यू है, दे कैन बी एनीथिंग. सो व्हेन y1 गोज टू 0, यस दीक्षा, ये पॉइंट नहीं समझ आया जो y1 माइनस y2 मोड अपॉन ये लिया है. कौन सा लिया है ये ये एक्सपेंशन लिखा है ना इधर देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू. यस तो यहाँ से y1 1 by 3 y2 इसकी वैल्यू निकालो, क्या आएगी, एक्सप्रेशन में तो यही था, यस इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस डिवाइड बाय दिस, इसको तो ले जाओ. ओके ओके सर. ये चीज होती है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है. तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये लिखा मैंने. ओके ओके ठीक है. सर. सो अब हमें मिलना क्या चाहिए था राइट हैंड साइड में, अगर ये ट्रू होता कंडीशन, तो मिलना क्या चाहिए था, एक कांस्टेंट, ये मिलना चाहिए था. अब कांस्टेंट तो नहीं मिल रहा, कांस्टेंट की जगह क्या आ रहा है, 1 बाई y1. अब y1 भी 0 के नियर हो सकते हैं. सो व्हेन y1 गोज टू 0, this will be a very big number, or you can say this is unbounded. So this means f does not satisfy Lipset condition. Okay, so when y1 goes to 0, then 1 by y1 2 by 3, that becomes infinity. Hence f does not satisfy Lipset condition. तो क्या कह सकते हो आप, क्या कंक्लूड करोगे फिर आप, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, बताओ. हैं, अभी मैंने बोला दीज आर सफिशिएंट कंडीशन.
if conditions are true, हेलो there exists a Sir? unique. हाँ जी, सर, ये इन्फिनिटी पे कैसे y1 टेंस टू 0 पे इन्फिनिटी कैसे टेंस कर रहा है सर? ग्रोथ तो उसको डिनोमिनेटर का कहीं से मोर देन है डिनोमिनेटर से। हमें कंडीशन में एक्चुअली ये चाहिए लिप्सड कंडीशन में। सर ये इन्फिनिटी पे कैसे टेंस किया y1 टेंस टू 0 पे? जब मेरे को ये नहीं y1, समझ। ये मैं दोनों को अलग अलग सेपरेट करके देख रहा हूँ। ये चीज हमें चाहिए लिप्सड कंडीशन में। वो तो समझ गया सर। साथ में एक कांस्टेंट आना चाहिए यहाँ पे, ये कांस्टेंट आना चाहिए यहाँ पे, बट कांस्टेंट की जगह क्या आ रहा है, 1/y1 आ रहा है। हालांकि दोनों इन्फिनिटी को जा रहे हैं वैसे तो, बट मैं इस टर्म जब को छोड़ के जो कांस्टेंट साथ में आएगा, कांस्टेंट नहीं आ रहा एक्चुअली यहाँ पे। सर ये मॉड ऑफ y1 माइनस 0 है और ये y1 टेंस टू 0 पे इन्फिनिटी कैसे सर जा रहा? ये 0 पे जाएगा ना? कौन सा 0 पे जाएगा? ये आपकी जो सारी वैल्यू है मॉड ऑफ y1 माइनस 0 अपॉन y1 की पावर 2/3। आप मेरी बात सुन नहीं रहे ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये डेफिनेशन में लिप्सड कंडीशन की डेफिनेशन में क्या है कि ये जो डिफरेंस है ft(y1 माइनस ft(y2), this जी must be less than or equals to some constant times y1 minus y0। ये तो होना चाहिए, साथ में एक कांस्टेंट आना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह क्या आ रहा है, 1/y1 2/3 which जी depend on y, जी so which is not constant, that's what I want to say। कांस्टेंट की ओके जगह क्या आ रहा है, 1/y1 2/3 which is unbounded। ओके मान लो ये अगर ये होता, ठीक है, ये चीज होती और आपका डोमेन उसने दे रखा होता, मान लो डोमेन 1 to 2 है, जी फिर हम कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, अब इसका मैक्सिमा निकालना है तो 1/y1 की जगह 1 फिट कर देते हैं हम, है ना। जी ऊपर वाले y1 को 1 नहीं फिट करना, ये हमें चाहिए वहां पे, ओके दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है आपने। तो इसको आप 1 फिट कर देते तो l क्या आ जाता, 1 आ जाता, फिर हम कहते हैं कि ये ठीक है, इट्स ट्रू। ओके ओके, अब डोमेन के अंदर 0 भी है, ठीक है, जी तो 0 है तो इसका मीनिंग है दिस इज अनबाउंडेड। इन अदर वर्ड्स you cannot write this expression as, okay, so f does not satisfy Lipschitz condition। So what is the conclusion am I asking? जिन्होंने पहले क्लासें लगाई हैं, बताओ क्या कंक्लूड करें फिर। we can't say unique solution। हाँ, so if conditions are not true, so इसका मीनिंग है कि अब जब कंडीशन वायलेट हो रही है तो आप वी आर नॉट श्योर। अब फिर चेक कैसे करोगे? अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, अगर आप सॉल्व कर पाओ तो इंटीग्रल करके सॉल्व कर लो, अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो ठीक है, इट्स ओके। सो हेंस वी आर नॉट श्योर अबाउट existence and uniqueness of solution। Also we will prove one theorem in next class। एक्चुअली जो एग्जिस्टेंस में सिर्फ कंटिन्यूटी ही चाहिए, सो इफ एफ इज कंटिन्यूस देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। जो हमने जो प्रूव करने का वे था उसमें पिकार्ड अप्रोक्सीमेशन यूज हुए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। पिकार्ड अप्रोक्सीमेशन में लिपस्टेड का यूज है। सो इन अदर वर्ड्स, इन द प्रूफ ऑफ थ्योरम this Lipset condition is intermediary and it is not necessary। we can prove existence without Lipset in next class, that is known as piano theorem। but before I am writing a small result, you can write it an example or theorem, whatever। so this says that solution depends on initial data। so
we put a condition that let f be continuous which is defined on the region S. So region is pair Ty in R2 where T minus T naught less than A. Or it can be rectangle. So in other words, whether region is bounded or unbounded in Y. So in both cases. फर्स्ट केस में इसका क्या बनेगा t माइनस टी नॉट लेस देन a, तो ऐसे बनेगा ये y में अनबाउंडेड होगा. सेकंड में क्या बनेगा रेक्टेंगल, p भी बाउंडेड है और y भी बाउंडेड है, सो यू गॉट रेक्टेंगल. वी हैव सीन पिक्चर्स ऑफ दीज टू रीजन्स अर्लियर. इन बोथ रीजन also f satisfy a Lipstadt condition with constant L. Then number 1, let y1 and y2 are two solutions on interval I, which is minus a plus t naught to a plus t naught of initial value problem dy by dt equals to f of ty with condition y t naught equals to y naught and y t naught equals to y1 respectively. तो y1 सोल्यूशन क्या है फर्स्ट कंडीशन के साथ और y2 किसके साथ है सेकंड कंडीशन. अच्छा ये कंडीशन सॉरी हमने सेम लिख दिया, इनको कुछ और लिख लेते हैं, फाई और साई लिख लो इनको. लेट फाई एंड साई आर टू सॉल्यूशंस. फाई क्या है y t नॉट इक्वल टू y नॉट इस कंडीशन के साथ है और साई किसके साथ है सेकंड कंडीशन के साथ. डिफरेंशियल इक्वेशन है, कंडीशन चेंज करोगे सॉल्यूशन चेंज होगा. सो यू हैव टू कंडीशंस on I, then prove that phi minus psi less than or equals to y naught minus y1 e power L modulus I t minus t naught. स्टेटमेंट बिगर है बट प्रूफ छोटे छोटे हैं. सो देन यू कैन फाइंड difference of two solution which is bounded by this. Okay. सेकंड है कि आपके पास दो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है. फर्स्ट में तो दो कंडीशन है, सेकंड में दो आईवीपी हैं. तो एक तो हमने लिख लिया एफ, एक दूसरा जी है. लेट जी बी कंटिन्यूअस ऑन गिवन रीजन and G is continuous and so GTy minus FTy that is less than or equal to epsilon for every T and Y they belongs to region S or A. यानी कि दोनों एक दूसरे के क्लोज अगर हुए G माइनस एफ दैट इज लेस देन एप्सिलॉन
Sir, can you move to the previous slide once? Okay, sir. Okay, so let phi and psi be solutions of initial value problems. Initial value problems y dash equals to f of ty with one condition yt not y naught, और सेकंड है जो y dash equals to g of ty yt not equal to y1 respectively. Then phi minus psi less than epsilon a e power la for every t in I. इस स्टेटमेंट का जो मीनिंग है, इसको हम वर्ड्स में भी कह सकते हैं. इसका मीनिंग जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसका मीनिंग है एज सून एज g अप्रोचेस टू f, as epsilon goes to 0, then the solution phi approaches to psi. Okay, इसको आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो. So in particular, as g ty approaches to f of ty uniformly, that is epsilon goes to 0, then phi t approaches to psi of t on I. Statement looks bigger but proof is similar to uniqueness. अगर आपको ध्यान हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिकनेस डिस्कस किया था. यूनिकनेस ये आपने 2y का डिफरेंस कंप्यूट किया था. 2y का फिर लिपशेड लगाओ पे फर्स्ट, और फिर आपने ग्रोनवाल यूज किया था. यहाँ पे सेम प्रूफ है, यूनिकनेस टाइप, उसी टाइप का प्रूफ है ये बिल्कुल. जस्ट फॉलो द सेम लाइंस. So firstly, see first statement clearly. Phi and psi are two solutions of IVP. अब phi और psi के, phi के corresponding initial condition y naught है, psi के corresponding y1 है. So different condition है, different solution है, तो दोनों का difference ये होगा. ठीक है, तो फर्स्टली आप दोनों solution लिख लो, दोनों को माइनस करो, use Lipschitz condition and then use Gronwall, you will get your result. And same for second part. Okay, so firstly you need to write assumption. What is given? So what is given? Let f be continuous and satisfy Lipschitz condition on region S or A. I am not rewriting, so you can rewrite those region again. S क्या है? Strip है, vertical strip, और A क्या है? Rectangle है. Okay, so this is given. So in part 1, so let phi is solution of IVP
y prime equals to f of ty with condition y t naught equals to y naught, then तो सॉल्यूशन होगा तो किस फॉर्म में लिख सकते हो आप इसको? इंटीग्रल फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा? इंटीग्रल फॉर्म लिखी थी ना हमने, वाई टी इक्वल्स टू इनिशियल कंडीशन वाई जीरो प्लस टी नॉट टू टी एफ एस वाई एस, वाई की जगह फाई डी एस. सो फाई विल सेटिस्फाई द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. जस्ट इसको इंटीग्रल कर लो और वाई की जगह फाई लिख दो. ओके. एंड सिमिलरली साई इज आल्सो सॉल्यूशन. किसका सॉल्यूशन है साई? सेम प्रॉब्लम का विद डिफरेंट कंडीशन y1, तो y नॉट की जगह y1 आ जाएगा यहाँ पे. एवरीथिंग इज सेम. आल्सो साई इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन IVP with y t not equals to y1, then psi of t will be, कंडीशन चेंज कर दो, y जो नॉट की जगह y1. ओके. दोनों को माइनस कर दो. फाई माइनस साई, माइनस करोगे तो कंडीशन भी माइनस होंगी. ओके. टी नॉट टू टी इंटीग्रल भी माइनस होंगे. सेम इंटीग्रल है, ये लिमिट सेम है. फर्स्ट में आ जाएगा एस फाई एस, सेकेंड इज एफ एस साई एस. ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज कर लो. ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज कैसे करोगे? इसको सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट कर दो दोनों को. सो विच इज लेस देन और इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड को मैक्सिमम बिगर कर दो. लिमिट को भी आप मतलब पॉजिटिव रखना है अपने इंटीग्रल को. तो हम क्या लिखते थे वहां पे? मिनिमम टी टू टी नॉट टू मैक्सिमम टी टू टी नॉट. यानी कि राइट हैंड साइड में सब कुछ पॉजिटिव है. टी और टी नॉट दो वैल्यू है ना. जो बिगर होगा वो अपर लिमिट में आ जाएगा, जो स्मॉल होगा वो लोअर लिमिट में. सो एवरीथिंग इज पॉजिटिव. इंटीग्रेंड भी पॉजिटिव है. जो इंटीग्रल आप कर रहे हो लोअर टू अपर लिमिट कर रहे हो, स्मॉल टू बिगर, तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आएगा. ठीक है. एवरीथिंग इज पॉजिटिव ऑन राइट हैंड साइड. सो राइट दिस डिफरेंस, इंटीग्रेंड देन डी ऑफ एस. अब लिपस्टेड यूज कर लो इस पे राइट हैंड साइड पे. फर्स्ट टर्म एज इट इज. लिपस्टेड यूज करोगे तो एल कांस्टेंट बाहर आएगा. ठीक है. अंदर क्या बचेगा? अगर आपने ये चीज से बचना है, ये चीज आपने अगर नहीं लिखना, तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख देना कि फॉर t ग्रेटर देन t नॉट. तो दो वे में प्रूव करना पड़ेगा आपको. एक बार t ग्रेटर देन t नॉट और एक बार t लेस देन t नॉट. इन बोथ केसेस यू विल गेट सेम रिजल्ट. ठीक है. फिर आप t नॉट टू t लिख दो यहाँ पे सीधे, t नॉट टू t. और फिर एक बार दोबारा से रीराइट लिखो. फिर क्या लिखोगे? इफ t लेस देन t नॉट. सो इन बोथ केसेस फाइनल आंसर वुड बी सेम. तो उससे बचने के लिए मैं लिख रहा हूं कि जो भी बड़ा होगा, राइट हियर. ओके. तो इसका आंसर क्या आएगा फाइनल? यहाँ पे अप्लाई लिपस्टेड. क्या आएगा लिपस्टेड कंडीशन से? एफ एस दो वाई का चेंज हो रहा है, ए वाई, तो यहाँ पे यही आ जाता है एल टाइम्स y1 minus y2 using Lipset condition. Now use Gonval's
डोनोवन इक्वालिटी हमने लिखी थी, अगर आपको ध्यान हो, एफ की जगह ये आ गया एफ, अगर पॉजिटिव फंक्शन है, एफ लेस देन और इक्वल्स टू पॉजिटिव कांस्टेंट सी प्लस के इंटीग्रल सेम फंक्शन, यूज ग्रोनवाल्ड इनइक्वालिटी। ओके, यूजिंग ग्रोनवाल्स इनइक्वालिटी। तो एफ क्या आ जाएगा, एफ की जगह ये है फाई टी माइनस आई टी, एफ लेस देन और इक्वल्स टू जो कांस्टेंट है सी ई की पावर एल मॉड टी माइनस टी नॉट। सो दिस प्रूफ पार्ट फर्स्ट। ध्यान है ग्रोनवाल्ड इनइक्वालिटी, ये भूल गए? रिमेंबर ग्रोनवाल का जो फर्स्ट पार्ट था मेन, जो ये वाला, एफ नॉन नेगेटिव फंक्शन है, एफ टी लेस देन कांस्टेंट प्लस एवरीथिंग इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, के पॉजिटिव, टी नॉट टू टी एफ एस अगर ये हो तो एफ टी लेस देन सी ई पावर के टी माइनस टी नॉट। ओके, तो सी की जगह आपके, सी की जगह हमारे पास क्या है, वाई वन माइनस वाई नॉट, और के की जगह एल है, बाकी सब कुछ सेम है, और एफ की जगह क्या है वहां पे, फाई माइनस आई मॉडुलस। So applying Gronwall inequality, you get result. Similarly, you can prove second part. Help me to prove. बताओ कैसे करें? Firstly, phi किसका solution है second में? Let phi be solution of y prime equals to f of ty with condition y0. फर्स्ट और सेकंड में एक डिफरेंस है, वहां पे दो कंडीशंस थी बट यहाँ पे दो राइट हैंड साइड हैं। ठीक है, वहां दो कंडीशन थी, यहाँ पे एफ और जी, यानी कि आप राइट हैंड साइड चेंज कर रहे हो, तो एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग फाई सोल्यूशन है और जी के कॉरेस्पॉन्डिंग साई है। ओके, सो यू हैव टू डिफरेंट राइट हैंड साइड इन दिस एग्जांपल, टी नॉट टू टी एफ एस फाई एस डी एस इंटीग्रल फॉर्म, और साई किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, लेट साई बी ए सोल्यूशन of problem y prime equals to g of ty with same condition, then psi t equals to, अब कंडीशन सेम है बट यहाँ पे f की जगह g आ जाएगा। प्रूफ सेम है, और उसने कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है कि जो f और g हैं वो दे आर क्लोज टू ईच अदर। वैसे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है, इसका मीनिंग ये है कि when g approaches to f uniformly, then what will happen, that is question. अब सेम वे में आपने माइनस करना है और देन वी विल सी फर्दर। दोनों को माइनस कर दो सॉल्यूशन को, अगर मॉडुलस में प्रॉब्लम आ रहा है पहले आप माइनस कर लो फिर मॉड लगा दो बाद में, एक ही बात है। ठीक है, माइनस करोगे तो वाई नॉट विल कैंसिल आउट। ठीक है, फाइव माइनस फाइव सेम है ये। इंटीग्रल करोगे टी नॉट टू टी एफ एस फाई एस माइनस जी एस साई एस डी एस। अब हमने लिपसेट लगाना है,
अब लिपस्टेड कब लगेगा? जब आपके पास सेम f माइनस एफ, सेम फंक्शन सेम होना चाहिए, बट यहाँ तो फंक्शन डिफरेंट है, तो डायरेक्टली तो हम लिपस्टेड नहीं लगा सकते, बट हम थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। मेरे पास एफ आई एस है ये, ओके, मैं माइनस प्लस कर रहा हूँ एफ एस आई एस, इसको माइनस किया, सेम नंबर को सेम को प्लस किया, एफ के साथ दूसरा फंक्शन साई, तभी लिपस्टेड लगेगा ना। तो इन दोनों पे हम लिपस्टेड लगा सकते हैं। और दूसरी कंडीशन भी यूज कब होगी? एफ माइनस जी, ये वाई वाई सेम होना चाहिए, तभी लगेगी कंडीशन, ये दोनों आर्गुमेंट सेम हो। एफ एस इसमें सेम ही है, देखो ये माइनस प्लस किया, जी ऑलरेडी है, जी एस आई एस। सेकंड थर्ड और फोर्थ पे ये कंडीशन लग जाएगी लेस देन एप्सिलॉन, और फर्स्ट टू पे क्या लग जाएगा आपका? फर्स्ट टू पे लिपस्टेड और लास्ट टू पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वाली कंडीशन, g minus f less than epsilon. Okay, so take modulus, use condition, take modulus, therefore phi t minus psi t less than or equals to t naught to t, चलो हम इस वे में करते हैं, t ग्रेटर देन t naught, ठीक है। आप ये भी, क्योंकि बुक्स वगैरह में ज्यादातर इस फॉर्म में लिखा होता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, सो यू कैन राइट दिस। इंटीग्रल को पॉजिटिव कर दो, फर्स्ट वाला एफ आई एस, ये राइट हैंड साइड बड़ा हो जाएगा, सेपरेट कर दो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करो, फर्स्ट ये बनेगा और सेकंड टी नॉट टू टी एफ एस साई एस माइनस जी एस साई एस, यूज ट्रायंगल इनइक्वालिटी, सेपरेट टू इंटीग्रल्स। तो फर्स्ट पे तो लिपस्टेड लगा दो, सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू एल टी नॉट टू टी फाई एस माइनस साई एस, फर्स्ट पे लिपस्टेड और सेकंड पे यूनिफॉर्म वाली कंडीशन, सो एफ माइनस जी लेस देन एप्सिलॉन, सो एप्सिलॉन डीएस। अब ग्राउंड वाल लगा दो। अब इसको आप सेकंड इंटीग्रल पॉसिबल है, ये इंटीग्रल क्या आएगा? फैलल कांस्टेंट है डीएस का एस, और टी माइनस टी आ जाएगा, टी माइनस टी ना, तो इसको आप ये लिख सकते हो फाई एस माइनस आई एस, और t माइनस टी नॉट आएगा, और t माइनस टी नॉट लेस देन a है गिवन रीजन में, उसकी जगह आप a लिख सकते हो t माइनस टी नॉट की जगह, ये साइड बड़ा रहेगा। अब क्योंकि ग्राउंड वाल लगाना है हमने, तो ग्राउंड वाल में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इंटीग्रल होना चाहिए इस फॉर्म में। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में है, सेम इंटीग्रल, एक कांस्टेंट प्लस सेकंड कांस्टेंट। Now use Gronwall inequality. Using Gronwall's inequality. तो क्या आएगा? एफ टी की जगह फाई माइनस साई टी लेस देन और इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट सी जो था हमने लिखा, सी की जगह फैलन ए है, ई की पावर एल, यहाँ पे क्या आता है? टी माइनस टी नॉट आता है, और इसको अभी आप लिख सकते हो टी माइनस टी नॉट लेस देन ए, तो ये साइड और बड़ी हो जाएगी, टी माइनस टी नॉट लेस देन ए, ये प्रूफ करना है ना हमने, एल ए, हाँ फलन एल ए, टी माइनस टी नॉट जो रीजन है ये यूज कर रहे हैं हम, टी माइनस टी नॉट लेस देन ए, तो ये साइड और बड़ा होगा, यही हमने प्रूफ करना था।
फॉर t बिलोंग्स टू i, और i इंटरवल क्या है आपका जिसमें t माइनस टी नॉट लेस देन a हो। So that you need to prove. Okay, any doubt in this? Any doubt you want to ask? Whenever you want to prove, इस टॉपिक में कभी भी आपने प्रूव करना है कि एक पॉजिटिव फंक्शन दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू कांस्टेंट, इंटीग्रल भी पॉजिटिव मतलब ये हो कि लो स्मॉल टू अपर लिमिट में सेम फंक्शन का इंटीग्रल यही है ना, फाइव माइनस आई का इंटीग्रल प्लस सम पॉजिटिव कांस्टेंट, then you can use Grunwald inequality which says that this function less than or equal to first constant, then e power l, then t minus t naught. और हमने ये रिजल्ट प्रूव किया था for t greater than t naught, and you can add one line similarly. We can prove for t less than t naught. Actually इसमें t greater than t naught है तो सीधा ही आप ब्रैकेट लगा सकते हो, मतलब ये पॉजिटिव आएगा। सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, जब टी नॉट बिगर हो तो यहाँ पे टी नॉट, सेकंड वाले में यहाँ पे टी नॉट माइनस टी आएगा, क्योंकि इंटीग्रल रिवर्स हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। टी टू टी नॉट करोगे जब तो टी नॉट माइनस टी आएगा। तो दोनों केसेस को कंबाइन करोगे, यू विल पुट ए मॉडुलस। ठीक है, मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए वो, सो यू कैन कंबाइन बोथ केसेस। Any doubt? It looks bigger, but statement looks bigger, but if you go step by step, first में what he want to say that you have two solutions according to two different conditions, then you need to find difference of these two solutions. Okay, जब भी डिफरेंस निकालना है यूज ग्राउंडवाल इनइक्वालिटी। और सेकंड में वो क्या कर रहा है, यू हैव टू डिफरेंट राइट हैंड साइड, एक बार f है एक बार g है, बट यू हैव सेम कंडीशन। लेट अस से यू आर सॉल्विंग, एक इक्वेशन आपने ये सॉल्व किया है sin t y, एक आपने ये सॉल्व किया है। ओके, सो यू हैव टू डिफरेंट राइट हैंड साइड। सो इट सेज दैट if right hand side are close enough to each other, then so solutions are also close enough. अगर right hand side close है तो solution भी close होगा। So go step by step, write two solution, find their difference, use Lipstadt and then use Grunwald inequality. तो जो फर्स्ट कंडीशन है इसको वैसे नाम भी है, सो फर्स्ट कंडीशन सेज दैट, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस डिपेंडेंस। सो दिस इज कॉल्ड, फर्स्ट कंडीशन इज कॉल्ड कंटिन्यूस डिपेंडेंस ऑन इनिशियल डाटा। कंटिन्यूस डिपेंडेंस, So this means if initial data, अब आप यहाँ में ये भी देख सकते हो ना, if y0 is close to y1 then phi is close to psi। अगर ये डिफरेंस जीरो को अप्रोच करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड तो छोटा है ना इससे, और पॉजिटिव भी है, सॉरी phi psi को अप्रोच करेगा। और सेकंड में क्या है कि अगर डिफरेंट राइट हैंड साइड है बट दे आर क्लोज एनफ, then solution is also close enough. And tomorrow we will finish this chapter and we will prove a theorem that only uses continuity of f to prove existence.
Please try to join tomorrow's class at 9:20.